Hello students, welcome to Zare Academy. I'm Dr. Shaista Mansoor, your English mentor, and today we'll be discussing articles. So articles, what are articles? Articles are determiners which are used before nouns to demonstrate whether a noun is specific or unspecific. This might seem a very simple concept. What is a noun? Noun is name of a place, person, thing or idea. तो कोई भी चीज को डिटरमाइन करने के लिए क्या ये स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है, वो यूज आर्टिकल्स. देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, अ, एंड द, विच कैन बी फर्दर बाइफरकेटेड, जिनको हम बोल सकते हैं दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, जैसे इनडेफिनिट और डेफिनिट, जहां पर अ और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स है और द डेफिनिट आर्टिकल है. तो अब हम अ और एन कहाँ यूज करते हैं और द कहाँ यूज करते हैं, विल सी द rules. In case of a or an, because they are indefinite articles, they are used in before the nouns which are unspecific. जैसे अगर हमारे पास कोई singular countable noun है which starts with a consonant sound, उसके सामने हम लोग use करते हैं, जैसे a book, a car, a body, sorry, a boy, a university, a 1 rupee note. Now you might be thinking university and a 1 rupee note, ये तो vowel sounds है. But if you pronounce it correctly, you will see a university sounds like Y-O-U. And a 1 rupee note sounds like W-O-N, 1 rupee note. So those are the vowel sounds, sorry, consonant sounds, Y and W. So they take a. And now where do we use an? An is used before a singular countable noun that begins with a vowel sound. जैसे हमारे पास है an apple, an hour, an honest man, an air, an MLA. Now you might be confused कि कैसे H और M तो consonant sounds है, तो हम लोग an क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं. लेकिन जब आप इसको properly pronounce करेंगे, an hour, here H is silent. So we pronounce it like an R. O sound comes out. So we are using an. Similar is the case with honest man. We don't say honest man. We say honest man. So it takes an. Again, an air. And in case of MLA, it sounds like EM. MLA. So it takes an. So it's important. How can we see where to take a or an? We have to kind of see whether the word starts with a consonant sound or a vowel sound. Both of these articles, a and an, are used before singular countable nouns. Now, now we'll be discussing the article. The is a definite article. तो अब हम द कहाँ यूज करते हैं, उन चीजों के लिए जो स्पेसिफिक है. We have certain rules where to use the word article the. जैसे first one is जहाँ पर noun already mentioned हो, like I saw a cat, the cat was black. अब पहले it was a random cat, एक unspecific cat, इसीलिए हमने a use किया. लेकिन जब मैं दोबारा उसके बारे में बात कर रही हूँ, अब वो स्पेसिफिक हो जाती है, अब मैं उस पर्टिकुलर कैट के बारे में बात कर रही हूँ. नाउ आई एम यूजिंग द कैट. Referring to unique things. So article the usually refers to unique things like the sun, the moon, the earth, the sky, or before superlative degrees. So the best, the most important, the least dangerous. हम लोग superlative degrees और अच्छे से देखेंगे जब हम लोग article adjectives पढ़ेंगे, जहाँ पर we'll be discussing degrees of comparison. ठीक है ना? So this is the third degree of comparison, superlative degree, जहाँ पर more than 2 things compare होती है. जैसे अगर मैं 2 चीजों को compare करूंगी, I'm saying like this book is good. So this is basic sentence. Now I'm saying this book is better than the one I was reading. This is second degree of comparison. And if I'm using superlative degree, I'll use this book is the best in the market. ठीक है ना? तो कोई भी चीज जो किसी चीज जो बिल्कुल कंपेयर कर रहा हो मल्टीपल चीजों को, मोर देन 2 चीजों को, उसमें हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं. द बेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द लीस्ट डेंजरस. बिफोर रिवर्स,
seas, oceans या deserts, जैसे the Ganga, the Pacific Ocean, the Sahara Desert, the Indian Ocean, या before mountain ranges या island groups like Himalayas, Andaman and Nicobar Islands, the Pir Panjal Range. But here we have to remember one thing. It's before mountain ranges or island groups, not a single mountain. So we cannot say the Mount Everest, but we can say the Himalayas. Then before newspapers, books or hotels, जहाँ पर एक specific book या specific newspaper या hotel का नाम दिया हो, वहाँ पर हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द रामायणा, द ताज होटल, द ओबेरॉय होटल, तो इन सब द हिंदू. तो ये न्यूज़पेपर्स, बुक्स के नाम, न्यूज़पेपर्स के नाम, होटल्स के नाम, उनके साथ भी हम लोग आर्टिकल द का यूज करते हैं. तो विद ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द लास्ट, जहां पर भी ऑर्डिनल नंबर्स हो, जैसे द फर्स्ट टाइम, द सेकेंड रो, द लास्ट बेंच, द सेकेंड बेस्ट, इन सब के साथ हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं. या नेशंस के साथ, बिफोर नेशंस, लेकिन किन नेशंस के साथ? जो प्लूरल या यूनिफॉर्म फॉर्म में हो, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, द नेदरलैंड्स, द फिलीपींस. यहाँ पर हम लोग बांग्लादेश के साथ द नहीं यूज कर सकते, लेकिन उन नेशंस के साथ या उन कंट्रीज के साथ जहाँ पर यूनियन फॉर्म हो या प्लूरल हो, ठीक है. विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे ही प्लेज द गिटार, शी प्लेज द पियानो, ही लव्स द फ्लूट, ठीक है ना. तो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जहां पर है वहां पर हम लोग द यूज करते हैं. अब इसमें हमारे पास ऐसे भी कुछ नाउन्स है जहां पर हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं, जैसे लैंग्वेजेस. हम लोग लैंग्वेजेस के साथ आर्टिकल यूज नहीं करते. शी स्पीक्स फ्रेंच या ही स्पीक्स स्पेनिश, हम लोग इसमें द फ्रेंच या द स्पेनिश यूज नहीं कर सकते. या सब्जेक्ट्स, जैसे ही स्टडीज हिस्ट्री या शी इज इंटरेस्टेड इन साइकोलॉजी, नॉट द साइकोलॉजी. स्पोर्ट्स, लाइक आई प्ले क्रिकेट या आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले बेसबॉल, इन सब स्पोर्ट्स के साथ भी हम लोग आई प्ले द क्रिकेट, आई प्ले द बेसबॉल नहीं लिख सकते हैं. मील्स, जहाँ जनरल फॉर्म में मील्स का जिक्र हो, जैसे वी हैड डिनर एट बी, ठीक है ना. वी हैड या वी आर गोइंग टू हैव अ लंच, वी आर गोइंग टू हैव लंच. तो इन सब चीजों के साथ हम लोग जो है आर्टिकल नहीं लेते. डेज या मंथ्स के साथ, मंडे इज अ हॉलीडे, द मंडे इज अ हॉलीडे, नो इट्स इनकरेक्ट. मंडे इज अ हॉलीडे. शी मेट मी इन द जून, नो शी मेट मी इन जून. जहां पर डेज और मंथ्स के साथ हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते. एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर जनरल सेंस में यूज हो, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर ऑनेस्टी के साथ हम लोग आर्टिकल नहीं यूज करेंगे. लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अगर ये स्पेसिफिक हो जाए, जैसे यहाँ पर नाउन ऑनेस्टी अगर स्पेसिफिक हो, लाइक द ऑनेस्टी ऑफ दैट मैन इम्प्रेस्ड मी, यहाँ पर हम लोग द यूज कर सकते हैं, ठीक है. नाउ देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां पर हम लोग कुछ चीजें तो खैर डिस्कस कर चुके हैं, विल रिपीट दैट ताकि आप लोगों को और क्लियर हो चीजें. जैसे एन MLA, MLA is incorrect. Why? Because MLA starts with sound EM, so we have to write an MLA. Yeah, an university, again it sounds like a vowel sound but starts actually with a consonant sound, so a university, not an university. Similar is the case with an honest man. Honest man is correct. Why? No doubt it starts with a consonant sound, but it sounds like a vowel sound. The Mount Everest. I just gave you the example of where we can use the with mountain ranges, but not with a single mountain. So, no article before a single mountain. So, we cannot use the Mount Everest. We might use Himalayas. In fact, we use the Himalayas, but we cannot use the Mount Everest. I went to the school to meet the principal. It's correct. No doubt school is unspecified, but it's a particular visit to a particular school. I went to the school to meet the principal. कोई एक specific reason की वजह से हम मिलने जा रहे हैं. स्कूल तो ये specified incident हो रहा है, वहां पर हम लोग the का इस्तेमाल कर रहे हैं.
या आई गो टू द स्कूल एवरी डे, यहाँ पर हम स्कूल के साथ द यूज नहीं करते हैं. वाई? बिकॉज इंस्टीट्यूशन के साथ जनरली द नहीं आता है. अगर इंस्टीट्यूशन कोई भी हो, हॉस्पिटल है या चर्च है, एज इंस्टीट्यूशन अगर उसको यूज किया गया है, वहां पर हम लोग आर्टिकल नहीं लेते हैं. अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेसिफिक विजिट हो, कोई स्पेसिफिक चीज बताई गई हो उसमें, उसमें उनके उस केस में हम लोग द इस्तेमाल कर सकते हैं. जनरली हम लोग यूज करेंगे आई गो टू स्कूल एवरी डे. तो देयर इज दिस एक्सरसाइज, इसे काइंड ऑफ आप भी चैट बॉक्स में इसके आंसर्स लिखिएगा, ताकि आप अपने आप को भी जज करें कि आप कितना चीज समझे कितना नहीं. एंड विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग इट इन द क्लास. दो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा कंफ्यूजन रहा होगा, वो दोबारा इस चीज को देख के अपना एक्सरसाइजेस सॉल्व करके उन्हें समझ आएगा कि कितना उन्हें समझ आया और कितना उन्हें और देखने की जरूरत. तो लेकिन हाँ, एक ऐसा करते हैं कि मैं दी 10 क्वेश्चन है, तो मैं 5 सॉल्व करती हूँ आपके लिए, 5 आप करेंगे और अपने चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे. ठीक है? सो द फर्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ owl. The owl, it starts with a vowel sound. So what will be the answer? An owl sitting on a consonant sound, singular, unspecified noun है. Sitting on a tree, क्योंकि कोई भी ट्री हो सकता है, कोई भी owl है. So I saw an owl sitting on a tree. He is an honest man. No doubt it starts with a consonant sound, but ये word sound कैसे करता है? Honest. O vowel sound. She wants to be an engineer. Again, because it starts with a vowel sound. They climb. क्या मैं यहाँ the use करूंगी? नहीं, ये mountain single mountain है, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा. So they climbed Everest last समर. हम यहाँ आ नहीं लिख सकते, एन नहीं लिख सकते, द नहीं लिख सकते. ठीक है? अगेन, अभी हमने एक रूल पढ़ा कि कोई भी मील के लिए हम लोग जो है आर्टिकल, स्पेसिफिक आर्टिकल यूज नहीं करते. वी हैड लंच एट 2 PM. वी डोंट नीड टू से कि वी हैड द लंच एट 2 PM. ही इज लर्निंग टू प्ले द फ्लूट. व्हाई? बिकॉज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स टेक स्पेसिफिक डेफिनेट आर्टिकल. Now, the other 5 questions are your homework. You will do it and write the answers in the chat box. I hope आपके confusions clear हो. Articles एक बहुत ही basic concept है, लेकिन बहुत important है with respect to all the entrance exam, चाहे वो BBA का हो, वो BCA का हो, BA LLB का हो या MBA का हो. इन सब entrances के लिए बहुत important concept है और इस पे questions जरूर आते हैं. So inshallah next time we'll come with more classes on parts of speech and other grammatical rules, and I'll see you soon. Thank you.